हेलो एवरीवन। एसएचएम के बारे में फंडामेंटल्स के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें देख चुके हैं। ये सब फॉर्मूला को थोड़ा एक बार आप नज़र डालिए, फिर इसको हम लोग न्यूमेरिकल करना अभी शुरू करेंगे। फॉर ए पार्टिकल इन एसएचएम द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप इज ऑफ द फॉर्मेट x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस φ0 में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। The velocity in any displacement x from mean position is given by omega into root over of a square minus x square. The maximum velocity is a omega, that is at the mean position. Magnitude of acceleration at any displacement x from mean position is omega square x. Maximum acceleration can be omega square a, जो कि mean position पे होता है, extreme position पे होता है, x is equal to a में होता है. At any displacement x from the mean position, the kinetic energy is half m omega square a square minus x square. Potential energy is half m omega square x square. Total energy is half m omega square a square. नोटिस करने वाली चीज यहाँ पे ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी x के साथ बदल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी x के साथ बदल रहा है, और टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग विथ x. That means SHM obeys law of conservation of mechanical energy. The force at any displacement x is given by mass into acceleration m omega square x. When kinetic energy is equal to potential energy, the displacement from mean position is given by x is equal to a by root 2. If the particle starts from mean position, the displacement time relationship becomes x is equal to a sin omega t. If the particle starts from positive extreme position, the displacement time relationship is x is equal to a cos omega t. Frequency of oscillation of kinetic energy and potential energy is double of particle frequency. ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इसके ऊपर कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। See this question here. A particle is executing SHM with amplitude 4 meter, time period pi by 2 seconds. It starts motion from mean position. Mass of the particle is 2 kg. What is These are the quantities we want to find out. तो शुरू हो जाते हैं एक एक करके। क्या डाटा हमें दिया गया है? यहाँ पर हमें डाटा दिया गया है, एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल इज 4 मीटर एंड टाइम पीरियड इज पाई बाय 2, मास इज 2 kg. ठीक है, दिया है एम्पलीट्यूड इज 4 मीटर, टाइम पीरियड इज पाई बाय 2. That means omega is known to us by the relation 2 pi by t. Substitute the value of t here, it is coming out to be 4 radian per second. Unit कभी मत भूलना. Mass of the particle is given. How much? Mass of the particle is given 2 kg. This is what is the data available with us. Okay. क्या पूछा है? Displacement time relationship of the particle क्या दिया है? It starts motion from mean position. तो क्या कहेंगे? बीट नंबर 1 का सॉल्यूशन तो आप लोग बता सकते हो. Displacement time relationship will be a sin omega t. Why? Because it starts from the mean position. That is 4 sin omega की जगह लिखेंगे 4 into t. ध्यान रखना a मीटर में था तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया मीटर. दिस इज व्हाट यू आर राइटिंग इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. तो यूनिट लिखना बहुत जरूरी है. कभी कभार हम लोग रिलेशन लिखते हैं, यहाँ पर यूनिट नहीं लिखते हैं. यूनिट हुआ मीटर. मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है. डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? v max यू नो इज a ओमेगा, सबको मालूम है. सो इट इज 4 into 4 16 मीटर पर सेकेंड. और मैक्सिमम एक्सीलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर a. कितना हो जाएगा ये? ओमेगा स्क्वायर मीन्स 16 into 4 इज 64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कितना सिंपल है, बस फॉर्मूला के यूज के लिए हमने बनाया. फिर क्या पूछा है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट ए पॉइंट midway between mean and extreme. अच्छा, at a point
midway between mean and extreme मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीचों बीच x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली a/2। तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ओमेगा इंटू रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज ओमेगा इज 4 इंटू रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर इज 4 स्क्वायर, a/2 इज 2, क्योंकि a 4 है ना, a/2 इज 2, सो ये 2 मीटर है, तो हम कहेंगे 2 स्क्वायर, कितना आ गया ये? 16 माइनस 4 इज 12, 12 इज नथिंग बट 2√3, सो इट इज 8√3 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर x का वैल्यू है 2, ओमेगा स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर इंटू 2 इज 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना सिंपल है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज कर रहा हूं। द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों बदल रहे हैं, लेकिन टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट एंड इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था? आप देखो, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, तो हम कहेंगे इट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। डाल दो वैल्यू सबका, हाफ m का वैल्यू है 2 kg, ओमेगा स्क्वायर इज 4 स्क्वायर, a is 4 square, and it is coming out to be how much? It is coming out to be 16 into 16, 256 joules टोटल एनर्जी। क्या डायरेक्ट फॉर्मूला की क्वेश्चन है? खाली फॉर्मूला के साथ एक्वेंटेंसी बढ़ाने के लिए ये छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दिया हूं। फिर क्या पूछा है बिट नंबर 5 में? टाइम गैप बिटवीन मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सीलरेशन। ओ, ये बात बीट नंबर 5 की बात करें। हम जानते हैं कि जब कोई पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, उसका वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है और एक्सीलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम है। तो ये दोनों समय के बीच में जो टाइम गैप है, क्या कोई मुझे बताएगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल T टाइम गैप कितना होगा? टोटल टाइम अगर T होता है तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है? T/4। यस, तो अब कहोगे कि टाइम गैप बिटवीन Vmax एंड Amax इज इक्वल टू T/4। T तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है? π/2 सेकेंड। सो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना? π/8 सेकेंड। बिट नंबर 6 क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ध्यान रखना है कि इट इज डबल ऑफ पार्टिकल फ्रीक्वेंसी। पहले पता करते हैं कि व्हाट इज द पार्टिकल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू 1 by टाइम पीरियड, एंड दैट इज इक्वल टू π/2 दिया था ना T का वैल्यू, तो हो गया 2/π। क्या होता है यूनिट? हर्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ज, है ना। तो हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2f, सो इट इज 4/π हर्ज। ये तो था क्वेश्चन जिसमें हम फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज किए। ठीक है, आपको ये सब चीजें समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली चीज था नहीं। जिनको भी सारा फॉर्मूला याद है वो फटाफट ये सब चीजें कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग ए सिस्टम विथ एम्पलीट्यूड a at what displacement from mean position the kinetic energy is half of potential energy। कोई पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सिस्टम, मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट पे उसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का आधा हो जाए। अच्छा, तो हम जानते हैं कि एट एनी डिस्प्लेसमेंट x द काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ m
ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये था हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहां से आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। आपको दिख रहा है कि ये जो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर है यहां पर भी कैंसिल हो गया। क्या मिल गया आपको? व्हाट यू गेट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है? मिल रहा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इधर ले आओ 3/2 एक्स स्क्वायर, और द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2 ए स्क्वायर बाई 3 का रूट ओवर, दैट इज √2 टाइम्स sorry it is root over of 2/3 times the amplitude. At this displacement the kinetic energy will be half of the potential energy. कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा। A block is of mass 4 kg and its amplitude is 2 meter. Its time period is pi second. Find its potential energy when kinetic energy is 20 joules. सोचिए, पूछा जब काइनेटिक एनर्जी 20 जूल से तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है? हाँ, आप काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जानते हो। आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप 20 जूल के साथ इक्वेट करो, करके आप यहाँ से x का वैल्यू निकालो। फिर पूछा है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, लेकिन हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हम पोटेंशियल एनर्जी पता कर सकते हैं। ये हुआ नॉर्मल वे ऑफ थिंकिंग। थोड़ा स्मार्ट वे में सोचते हैं, थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचते हैं। हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, और ये क्या है? हाफ एम इज 4 kg, ओमेगा अच्छा ओमेगा तो हम निकाले नहीं है। ओमेगा क्या है? 2 पाई बाय टाइम पीरियड, दैट इज टाइम पीरियड दिया गया है पाई। ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड दिया गया है पाई सेकेंड्स, सो इट बिकम्स 2। ओमेगा इज गिवन 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ए कितना दिया? 2। सो हाउ मच इट इज कमिंग आउट टू बी? इट इज कमिंग 4 × 4 is 16 × 2 is 32 जूल्स। और आप जानते हो कि जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है। यू नो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, और कितना ये 32 जूल, जो कि कांस्टेंट है। दिया जब काइनेटिक एनर्जी 20 जूल है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? इट इज 32 माइनस काइनेटिक एनर्जी 32 माइनस 20 जूल इज इक्वल टू 12 जूल्स। क्या बातें समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? है ना? तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, तो टोटल एनर्जी इज नॉट चेंजिंग। सो हमें अगर टोटल एनर्जी मालूम है, काइनेटिक एनर्जी मालूम है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर कोई एक सिस्टम है जो ऑसिलेट कर रहा है। एक ब्लॉक है, उसके ऊपर दूसरा एक ब्लॉक रखा गया और ये ऑसिलेट कर रहा है। कैसे ऑसिलेट कर रहा है? विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ठीक है, ये मेरे हाथ पे ये पेन रखा है, देखो मैं हाथ ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये पेन मेरे साथ ऑसिलेट कर रहा है। क्या पूछा है? फाइंड मैक्सिमम परमिसिबल एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन फॉर व्हिच द टू ब्लॉक्स ऑसिलेट टुगेदर। ये दोनों मिलके ऑसिलेट करेंगे, कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए? सर ये तो कोई बात समझ में नहीं आ रहा है। चलो सोचते हैं। मैं पेन को अपने हाथ पे रख के ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। अगर मैं हाथ को एक पर्टिकुलर एक्सीलरेशन से ज्यादा एक्सीलरेशन में नीचे लाने की कोशिश करूंगा तो देखो क्या हो रहा है। सपोज आई ब्रिंग माई हैंड डाउन विथ ए वेरी लार्ज एक्सीलरेशन, द पेन लूजेस कॉन्टैक्ट फ्रॉम माई हैंड, है कि नहीं? तो क्या बता सकते हो कब ये पेन मेरे हाथ से कॉन्टैक्ट छोड़ेगा? मैं तो धीरे से ला रहा से ये मेरे हाथ के साथ आ रहा है। इफ आई मूव माई हैंड विथ एन एक्सीलरेशन मोर देन g, है ना? अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है
अब ये जो प्लेटफॉर्म है, अगर ये नीचे एक्सीलरेशन ए में आएगा तो ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर एक शूडो फोर्स आएगा एम ए, जबकि उसका वेट एम जी है। जब तक एम जी एम ए से ज्यादा है इसको बैठा के रखेगा। अगर एम ए ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, इसको उठा लेगा यहां से, इट विल लूज कॉन्टैक्ट। सो इट विल लूज कॉन्टैक्ट व्हेन एक्सीलरेशन इज मोर देन और इक्वल टू जी, है ना। ये ब्लॉक कॉन्टैक्ट कब छोड़ देगा, जब इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, मोर देन और इक्वल टू जी। तो मैक्सिमम परमिसिबल एक्सीलरेशन पूछा है, तो हमें ध्यान रखना है कि इसका एक्सीलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट मस्ट नॉट बी मोर देन इक्वल टू जी। समझ में आया क्या? तो इसी कंसेप्ट को काम में लगाते हुए हम कहेंगे ठीक है, फॉर ऑसिलेटिंग टुगेदर, for oscillating together the acceleration at highest point must be less than or equal to g। ऑसिलेटिंग टुगेदर, कांटेक्ट छोड़ने के लिए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी। और पूछा है कांटेक्ट रहेगा, ऑसिलेट करेंगे टुगेदर तो शुड बी लेस देन इक्वल टू जी। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट में जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, वो तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन है, क्योंकि वो तो एक्सट्रीम पोजीशन है ना, एक्सट्रीम पोजीशन में जो एक्सीलरेशन होता है वो मैक्सिमम एक्सीलरेशन होता है। द मैक्सिमम एक्सीलरेशन शुड बी लेस देन इक्वल टू जी और इक्वल टू जी। अगर एक्सीलरेशन इज लेस देन इक्वल टू जी तो ये दोनों चलेंगे। मैक्सिमम कितना है, जी, और मैक्सिमम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा स्क्वायर ए मस्ट बी इक्वल टू जी। इससे पता चला कि परमिसिबल एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज जी बाई ओमेगा स्क्वायर। अगर ये सिस्टम ऑसिलेट करता है विथ एन एम्पलीट्यूड मोर देन जी बाई ओमेगा स्क्वायर तो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाला ब्लॉक को छोड़ देगा, दोनों मिलके ऑसिलेट नहीं करेंगे, दोनों मिलके ऑसिलेट नहीं करेंगे, ये ऑसिलेट करेगा, ऊपर वाला अपने हिसाब से गिरेगा। Are you getting? So the answer is A is equal to G by omega square। ये क्वेश्चन को देखिए, a particle in SHM, for a particle in SHM the velocity is 4 meter per second at a distance 3 meter from mean position and velocity is 3 meter per second at a distance 4 meter from mean position। Find the maximum velocity। ठीक है, हमें मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा गया और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें मालूम है, इट इज ए ओमेगा। ए ओमेगा है तो हमें ए चाहिए, ओमेगा चाहिए, ये दोनों चीज निकल जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या डाटा है। सॉल्यूशन में देखेंगे, एट एनी डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम मीन पोजीशन, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और मैं भी स्क्वायर लिखूंगा तो लिखूंगा इट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू रूट ओवर निकल जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ सर, ये समझ में आया। पहला बिट में क्या दिया है, when displacement is 3 meter from mean position, velocity is 4, x is equal to 3, v is equal to 4 meter per second, ऐसा दिया है। इसमें डाले तो क्या इक्वेशन मिलेगा, v के जगह 4 डालो, it is coming 16 is equal to omega square into a square minus 9, call it equation number 1। when x is equal to 4, where it is at a distance 4 meter from mean position, velocity is 3, तो आप कहोगे velocity is 3 meter per second। अगर इसी इक्वेशन में डालते हैं, वेलोसिटी की जगह 3 डालेंगे तो मिलेगा 9 is equal to ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 16, ऐसे करके आपको दो इक्वेशन मिले, कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ए और ओमेगा दो अननोन है और आपके पास दो इक्वेशन है, सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ ए एंड ओमेगा, और हमें यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी की भी जरूरत पड़ेगा। तो ठीक है, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। वी कैन से
9/16 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 16 बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 9। ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया है ना, तो ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया। मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था और पता चला कि मेरा ओमेगा कैंसिल हो रहा है। व्हाट इज लेफ्ट? इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 कर रहा हूं, इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 कर रहा हूं। क्या दे रहा है मुझे? ये दे रहा है। सिंपलीफाई करिए, 9/16 ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 9a स्क्वायर माइनस 81, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले लो। इट इज 16a स्क्वायर माइनस 256। यस, तो ये हो गया, इसको इधर ले लीजिए, आ गया ये 7a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले आइए, 256 माइनस 81। 256 माइनस 81 कितना होता है? 256 माइनस 81 हो गया आपका, ये गया तो हो गया 5 और ये हो गया 17, 175। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है देखिए, तो इट माई कैलकुलेशन इज नॉट रॉन्ग, इट इज कमिंग आउट टू बी a स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई किए 9a स्क्वायर माइनस 81, ये 16a स्क्वायर माइनस 256। यस, तो ये हो गया 16a स्क्वायर कम्स टू दिस साइड और 9a स्क्वायर गोस टू दैट साइड, 7a स्क्वायर ये हो गया इधर आ गया, तो हो गया 256। ठीक, तो फिर यहां से हमें a का वैल्यू मिल गया। कितना मिला a का वैल्यू देखिए, तो हाउ इज कमिंग वैल्यू ऑफ a? 17, इट इज कमिंग आउट टू बी a स्क्वायर, हाँ a इज कमिंग आउट टू बी 5, सो a इज 5 मीटर। बढ़िया, a मिल गया, हमें ओमेगा निकालना है। अब किसी भी इक्वेशन में a का वैल्यू डालिए, ओमेगा निकल जाएगा। किसी भी वैल्यू में, किसी भी इक्वेशन में आप a का वैल्यू डालिए, ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा मिल जाएगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी हम पता कर सकते हैं, है ना। तो अब हम a का वैल्यू डाल देते हैं किसी में, तो मिलेगा हमें, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, a की जगह 5 डालिए, 25 माइनस 9 इज 16, 25 माइनस 9 इज 16, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू 16 इज इक्वल 16, इसका मिल रहा है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ओमेगा इज 1 रेडियन पर सेकेंड। ये यूनिट लिखने की आदत रखो अपने पास। पूछा क्या है हमें? ओमेगा मिल गया, a मिल गया, नहीं पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। अब और क्या रखा, इतना बनाने के बाद तो बाकी हम लोग सब कुछ बना सकते हैं। पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, आप कहोगे ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन a ओमेगा v max इज इक्वल टू a इंटू ओमेगा। a निकल गया 5, ओमेगा निकल गया 1, सो इट इज 5 मीटर पर सेकेंड। द मैक्सिमम वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबको समझ में आया? यस। आगे अभी हम लोग और एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल देखेंगे, दैट इज एसएसएम ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डिफरेंट सिस्टम जो आपकी कोर्स में पहले है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, पेंडुलम सिस्टम, ये सब का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, थोड़ा ध्यान से देखना मैं कैसे इसको डिराइव कर रहा हूं। सपोजिंग पहले लेते हैं हॉरिजॉन्टल सिस्टम। मतलब मैं ले रहा हूं कि हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और जिसके साथ कोई एक ब्लॉक अटैच्ड है जिसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k। अब मैं ये ब्लॉक को धक्का देने वाला हूं और धक्का खा के ये कुछ ऑसिलेट करने वाला है। कैसे? ऐसे ऑसिलेट करने वाला है। पहले मैं चेक करूंगा कि ये जो मोशन में देखने जा रहा हूं ये तो ऑसिलेटरी मोशन है, दिख रहा है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं?
अब सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं जानने की तरीका हमारे पास तो एक ही है, क्या है? एट एनी डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द मीन पोजीशन इट मस्ट एक्सपीरियंस ए रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू x। चलिए देखते हैं, जब ये ब्लॉक को हम यहां से डिस्प्लेस करके सपोज यहां तक ले आए, ब्लॉक को डिस्प्लेस करके यहां से यहां तक ले आए, मतलब मीन पोजीशन से हम एक डिस्प्लेसमेंट दे चुके हैं, कितना x। क्या इस ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स है जो कि प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू x है? ऑब्वियसली जब ये डिस्प्लेस हो गया होगा, स्प्रिंग इसको वापस खींच रहा होगा, क्या फोर्स में? कि x, है ना? यस, तो हमें समझ में आया कि एट एनी डिस्प्लेसमेंट x, the spring force is equal to spring force is opposite to x, तो लिखेंगे माइनस kx, hence it is SHM, क्योंकि SHM का कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, ठीक है। तो अब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? अभी ऑसिलेट करेगा SHM में, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जानने के लिए फिर देखेंगे, स्टेप वाइज में जा रहा हूं। एट एनी डिस्प्लेसमेंट x, what is the acceleration? Acceleration is force by mass, that is kx by m। सर आप यहाँ पर माइनस kx लिखते हैं, यहाँ पर kx लिखते हैं, अपनी मर्जी जो भी चाहे लिख देते हैं। अरे भाई मैं यहाँ पर वेक्टर लिख रहा था, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। आप चाहो तो लिख सकते हो, आप कह सकते हो कि ये a इज इक्वल टू वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx by m। मैं स्केलर मैग्नीट्यूड को लिख रहा हूँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। हाँ, ये जानने से हमको क्या फायदा है? फायदा ही फायदा है। थोड़ा देखो, हम पता कर चुके हैं कि ये SHM है और एक्सीलरेशन इज दिस। फॉर SHM एट एनी डिस्प्लेसमेंट x, व्हाट इज द एक्सीलरेशन? इट इज ओमेगा स्क्वायर x। ये SHM है और इसका एक्सीलरेशन है kx by m। SHM में एक्सीलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर x। तो क्या पता चला इसमें से? कंपेयरिंग आपको मिलेगा, इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k by m। और व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन? रूट ओवर ऑफ k by m। कोई पूछेगा बताओ टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज 2 पाई रूट ओवर ऑफ m by k। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल करते वक्त इसको आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 पाई रूट ओवर ऑफ m by k। ठीक है, इसका मतलब आप इसको अगर धक्का देते हो, ये ऑसिलेट करता है विद ए टाइम पीरियड। कितना टाइम लेता है? एक बार जाके वापस आके फिर रिस्टोर करने के लिए 2 पाई रूट ओवर ऑफ m by k। ठीक है, 10 हमें ये समझ में आ गया कि फॉर ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, the time period of oscillation is coming out to be 2 pi root over of m by k। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या ये सेम चीज होता है फॉर ए वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए भी वही होता है कि कुछ दूसरा होता है? लेट अस पॉइंट नंबर 4, ए वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ठीक है, हमारे पास कोई एक स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट है। ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ये मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ठीक है, इससे पहले हम लोग जब ये वाला सिस्टम कर रहे थे, हमें डिफाइन करना चाहिए था व्हाट इज मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कौन सा पोजीशन होता है? द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑसिलेटरी मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पहले मीन पोजीशन को रिकॉग्नाइज करो, ये बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा कि उस चीज को मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा।
मीन पोजीशन कौन सा पोजीशन होता है? मीन पोजीशन इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। द ब्लॉक रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम एट द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो हम कहेंगे मीन पोजीशन इज एट natural length of the spring. The mean position is at natural length of the spring. ये चीज हमें समझ में आया। नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ पे ही मीन पोजीशन पे है। लेकिन इस केस में मीन पोजीशन क्या है? द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पर ये ब्लॉक रेस्ट में रह सकता है। हाँ, जला देंगे तो कहीं ना कहीं रेस्ट में रहेगा, बट इज इट द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग? नो, इट इज नॉट द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो मीन पोजीशन को क्या लेंगे? जिस पोजीशन में रुक सकता है इक्विलिब्रियम में, दैट विल बी कंसीडरिंग एट मीन पोजीशन। तो पहला चीज हमें समझ में आया, मीन पोजीशन इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पर ये रेस्ट में रह सकता है। अच्छा, मालूम नहीं है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में, यहां पर तो है। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ क्या है मालूम नहीं। सपोज दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ध्यान रखो। सपोज दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। अब मीन पोजीशन यहां पे है, मतलब वेयर इज द मीन पोजीशन? इट इज ऑलरेडी एट ए डिस्टेंस x0, मालूम नहीं है x0 कितना है, चाहे तो हम निकाल सकते हैं। मीन पोजीशन ऑफ द इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। एट मीन पोजीशन elongation in the spring कितना हुआ है देखो, तो इट इज कमिंग आउट टू बी x0। हम अस्यूम किए ये नेचुरल लेंथ से नीचे खींच लिया। क्या हम x0 निकाल सकते हैं? हाँ, ये इक्विलिब्रियम में है तो नीचे की तरफ mg है, ऊपर की तरफ kx0 है, तो आप कहोगे इट इज mg बाई k। अरे ये ब्लॉक रेस्ट में है, ऊपर को खींच रहा है kx0, नीचे को खींच रहा है mg, और ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब x0 इज mg बाई k। हाँ, ये समझ में आया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि इसको भी थोड़ा सा खींचूंगा नीचे और छोड़ दूंगा, और ये देखूंगा कि ये ऑसिलेट कर रहा है तो SHM है कि नहीं। आई वांट टू पुल इट डाउन बाय सर्टेन डिस्टेंस एंड लीव इट। आई वांट टू से वेदर इट इज एग्जीक्यूटिंग SHM और नॉट। मीन पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, मीन पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट में, एट एनी डिस्प्लेसमेंट x from mean position, what is the net force on the particle? चलो देखो, जब ये पार्टिकल कुछ यहाँ पर आ गया है, कहाँ कितना नीचे आ गया है? It has come down by a distance x from the mean position. मीन पोजीशन से कुछ x डिस्टेंस नीचे आया है, पार्टिकल कुछ यहाँ पे है। जो पार्टिकल यहाँ पे, what are the forces? एक तो उसका mg था, it was there, and there was a spring force. कितना था स्प्रिंग फोर्स? स्प्रिंग तो ऑलरेडी x0 एलोंगेटेड हुआ था, अब आप जबरदस्ती और x खींच रहे हो तो हो गया k इंटू x प्लस x0। क्या बात समझ में आ रहा है? ऑलरेडी स्प्रिंग में एलोंगेशन था x0, आप इसको जबरदस्ती और x डिस्प्लेसमेंट दिए हो चेक करने के लिए कि SHM होगा कि नहीं होगा। जब आप इसको x नीचे खींचे, स्प्रिंग में टोटल एलोंगेशन हो गया x प्लस x0, सो स्प्रिंग वापस खींचने लगा विद ए फोर्स k x इंटू x प्लस x0, है ना, और mg तो था ही। तो एट एनी डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम मीन पोजीशन, फोर्स ऑन द पार्टिकल क्या हो रहा है देखो। तो अब हम कहेंगे इट इज k x प्लस x0 माइनस mg, क्योंकि ये बड़ा है। सर ये बड़ा है कैसे पता चला? अरे भाई k x0 वाज इक्वल टू mg, तो k x प्लस x0 मस्ट बी मोर देन mg। सिंपलीफाई करो तो इट इज कमिंग k x प्लस k x0 माइनस mg। लेकिन आप तो जानते हो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में k0 क्या था? mg के बराबर था, सो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर गए। क्या बच गया? kx। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो नेट फोर्स आ रहा है, दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू kx, नेट फोर्स इज इक्वल टू kx। ये हमें समझ में आना बहुत जरूरी है।
द नेट फोर्स इज इक्वल टू kx। ठीक है, नेट फोर्स इज kx। अगर नेट फोर्स kx हो गया मतलब हम डिस्प्लेसमेंट दिए नीचे की तरफ, नेट फोर्स हो गया kx ऊपर की तरफ, तो फिर से हम देख लिए कि F is proportional to and opposite to x। F is vector proportional to and opposite to x। So it is SHM। अच्छा, तो पहला केस में क्या हुआ था? पहला केस में जो नेट फोर्स था वो क्या था? पहला केस में जो नेट फोर्स था वो भी तो कुछ ऐसे ही था। कितना था? इट वाज इक्वल टू kx माइनस kx। अभी नेट फोर्स क्या आ रहा है? वही माइनस kx। मतलब पहला वाला सिस्टम का जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन था इस केस में भी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वही रहेगा। कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन ये मिला कि फॉर ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम in any position the angular frequency of oscillation is equal to omega is equal to root over of k by m and time period is 2 pi root over of m by k। ठीक है, टाइम पीरियड इज root over of m by k। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम किसी भी पोजीशन में रहे, हॉरिजॉन्टल रहे, वर्टिकल रहे, इंक्लाइन रहे, ये याद रखना। जैसे मैं आपको बता दूं कि सपोजिंग अब हम देखें कि यहाँ पर कोई एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ऐसा है, ये ऑसिलेट कर रहा है। कोई एक दूसरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जो ऐसा है। मान लो कि हर एक केस में स्प्रिंग कांस्टेंट k है और मास m है। k है, ये मास m है। या फिर कोई तीसरा केस ले लो, यहाँ पर कोई एक इंक्लाइन प्लेन पे कोई एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम रखा गया है जिसका मास m है k। ये हर एक केस में जैसे ही ऑसिलेट करेगा इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा? हर एक केस में टाइम पीरियड विल बी 2 पाई रूट ओवर ऑफ m by k। ये याद रखना, ठीक है। और इंटरेस्टिंगली इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये अर्थ पे जितना करेगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मून पे भी वही करेगा, मून पे भी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ये करेगा। सो ये हमारा g के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है और हम देख रहे हैं कि डिपेंड करता है सिर्फ m और k के ऊपर। पहले में बताया था इन द एक्सप्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई 0 ओमेगा वाज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी व्हिच डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम फिजिकल पैरामीटर्स। कौन सा सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है? स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है तो k और m के ऊपर डिपेंड करेगा। कोई तीसरी चीज इसको नहीं बदलने वाला है। मतलब कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को धीरे से ऑसिलेट करवाओ, जितना ओमेगा मिलेगा, जोर से ऑसिलेट करवाओ उतना ही ओमेगा मिलेगा। हर केस में बराबर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मिलेगा, हर केस में बराबर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मिलेगा। अब कितना जोर से ऑसिलेट कर रहा है वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इसको धीरे से धक्का दूंगा तो धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा, जोर से धक्का दूंगा जोर से ऑसिलेट करेगा, बट टाइम पीरियड विल बी रिमेनिंग द सेम। ये हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अगर आपको ये चीजें समझ में आया तो आप मुझे बस एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर दो। In each of following cases, find time period of oscillation हर एक केस में आपको बताना है। पहला केस है, सिंपल है, यहाँ पे कोई एक स्प्रिंग लगा है, यहाँ पे कोई एक दूसरा स्प्रिंग लगा है और यहाँ पे कोई एक तीसरा स्प्रिंग लगा है। 3 स्प्रिंग लगे किसी एक ब्लॉक के साथ जिसका मास m है, हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट k है। और पूछा है कि अगर इसको मैं थोड़ा सा धक्का मुक्का देता हूँ तो ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा।
दूसरा केस क्या है? दूसरा केस में ऐसा कि एक स्प्रिंग है K और दूसरा एक स्प्रिंग है, मान लो ये K1 है, ये दूसरा स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। अब इसके साथ कोई ब्लॉक अटैच्ड है, अगर ये ब्लॉक को हम धक्का देते हैं तो ये ब्लॉक कैसा ऑसिलेट करेगा हम जानना चाहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों केस में हम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना चाहते हैं। कितना सिंपल है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो 2 पाई रूट ओवर ऑफ m by k होता है, बस k पता करना है, k पता करना है। पहला केस में अगर हम सॉल्यूशन को देखेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पे k इक्विवेलेंट क्या होगा, दे आर ऑल इन पैरेलल, पैरेलल में स्प्रिंग कांस्टेंट्स जुड़ जाते हैं, k plus k इज इक्वल टू 3k। तो फिर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाय k इक्विवेलेंट कितना हुआ, 3k। दूसरे केस में हम देख रहे हैं कि K1 एंड K2 आर इन सीरीज, तो पहले हम निकालना पड़ेगा व्हाट इज 1 बाई k इक्विवेलेंट, K1 एंड K2 आर इन सीरीज, है ना। अगर ये सीरीज में है तो हम कहेंगे 1 बाई k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। ये सब फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 K2 बाई K1 प्लस K2। हाँ, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाई k, m बाई k इक्विवेलेंट अगर करेंगे तो आएगा नीचे K1 K2, ऊपर आएगा K1 प्लस K2। क्या सबको समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? यस ये देखो सिंपल फॉर्मूला है, मतलब ऐसा कोई भी टेढ़ा मेढ़ा अरेंजमेंट दिया गया होगा तो आपको क्या करना होगा, पहले इक्विवेलेंट k निकाल लेना होगा, फिर टाइम पीरियड हो जाता है 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाई k। ठीक है, ये हमें समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा दिमाग पर जोर लगाना, मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे कोई एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ऐसा है कोई एक ब्लॉक जिसका मास है मान लो 9 kg और k दिया है, कितना दिया है 100 न्यूटन पर मीटर, 100 न्यूटन पर मीटर। k का वैल्यू दिया हुआ है, मास का वैल्यू भी दिया हुआ है, थोड़ा वैल्यूज को हम सेपरेटली लिख देंगे, ज्यादा जम्बलिंग दिख रहा है। तो ये k है, ये m है। इन फिगर शोन k is suppose something like say 100 or 25 ले लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 25 न्यूटन पर मीटर और m is say 4 kg। The block was given a sudden velocity of say 16 of 4 meter per second to right. During oscillation, find the displacement time relation for the SHM। ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप क्या होगा। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप क्या होता है भाई, a sin ओमेगा t प्लस फाई 0। कोई एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप होता है a sin ओमेगा t प्लस फाई 0। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप निकालना है तो आपको क्या क्या चीज की जानकारी होना चाहिए, a ओमेगा एंड फाई 0। ये तीन चीज मिल जाएगा, हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप मिल जाएगा।
चलो ऐसा कोई सिस्टम में हम पहले ओमेगा पता करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ठीक है, ये हमारा क्लू हो गया। ये क्लू को लेके हम लोग अभी आगे बढ़ने वाले हैं। सॉल्यूशन, ये हमारा क्लू है, इसको लेके हम आगे बढ़ना चाहते हैं अभी। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें थोड़ा सा इसको सजा के लिखते हैं तो ये ठीक दिखेगा। यस, नाउ हियर, क्या मुझे कोई ओमेगा बता पाएगा इसमें? ओमेगा तो होता है रूट ओवर ऑफ के बाई एम, और के कितना है? रूट ओवर ऑफ के बाई एम। के इज 25, एम इज 4, रूट ओवर कर लो, इट इज 5/2 रेडियन पर सेकेंड। बार बार बोल रहा हूँ, यूनिट को छोड़ना मत, यहीं पे मार्क कट जाते हैं। ओमेगा इज 5/2 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, और क्या दिया है? और क्या चाहिए मुझे? ए दिया हुआ है। अच्छा, दिया हुआ है कि जब वो यहाँ पे था, मीन पोजीशन पे था, उसको कुछ वेलोसिटी दिया गया 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। और आप जानते हैं अब ये ऑसिलेट करने वाला है। अब ये जो ऑसिलेट करेगा, ड्यूरिंग इट्स ऑसिलेशन मीन पोजीशन में क्या वेलोसिटी हुआ? अरे हम जो दिए थे, कितना दिए थे? 4 मीटर पर सेकेंड। तो हम कहेंगे वेलोसिटी एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू ए ओमेगा, और वो कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड गिवन। अच्छा, ये बात है। तो फिर हमें तो ओमेगा मालूम है, ए पता कर सकते हैं। इसका मतलब ए हो गया 4/ओमेगा। ओमेगा की जगह 5/2 डालिए, इट इज कमिंग 8/5 मीटर। एम्पलीट्यूड मिल गया 8/5 मीटर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? यस। इस केस में हमें ये भी पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप निकालने के लिए हमें थोड़ा फाइजरो की जानकारी लेना है। ये जो पार्टिकल है वो कहां से चलना शुरू किया है? द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम व्हिच पोजीशन? फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो हम क्या कहेंगे? एज इट स्टार्ट्स फ्रॉम, कहां से? मीन पोजीशन। तो फाइजरो का वैल्यू 0 हो जाता है। पॉजिटिव एक्सट्रीम होने से पाई/2 होता था, इसलिए तो cos ओमेगा t होता था जब वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता था। अब ये हो जाएगा क्या? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप क्या बन जाएगा? सोचिए। अब इतना समझ में आ गया तो आप डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप को आसानी से लिख सकते हो। ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप, तो हम कहेंगे thus the displacement time relationship is thus x is equal to a sin ओमेगा t, क्योंकि फाइ0 का वैल्यू 0 है। a sin ओमेगा t दैट इज a का वैल्यू हो गया 8/5, sin ओमेगा का वैल्यू हो गया 5/2, सो 5t/2। ध्यान रहे, मिस मत करना, यूनिट x लिख रहे हो एंड इट शुड बी हाउ मच? x। एम्पलीट्यूड तो हम निकाले थे मीटर में, तो ये आ जाएगा कितना? दिस मच मीटर। क्या क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबको समझ में आया? यस सर। यस। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए देता हूं। यहां पे कोई एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था। अब ये ब्लॉक ऐसा था। अब ये ब्लॉक का के दिया गया था, ये के है, ये एम है। हियर के इज 100, के इज 100 न्यूटन पर मीटर, एम इज से समथिंग लाइक 4 kg, ऐसा दिया है। The block was pulled to right,
by a distance of 2 meter and released ब्लॉक को हम राइट को 2 मीटर खींच लिए और छोड़ दिए, 2 मीटर खींच के छोड़ दिए। अच्छा, तो पक्का वापस आएगा। बिट नंबर 1, फाइंड करेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन for the resulting SHM जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप क्या होगा? आफ्टर what minimum time the block reaches the mean position, ठीक है, with what velocity the block reaches the mean position, ऐसा करके 3 चीज आपको पूछा गया। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है दिस ब्लॉक वाज पुल्ड टू राइट बाय 2 मीटर। ब्लॉक को हम राइट को खींच लिए बाय 2 मीटर और वहां से छोड़ दी। जब छोड़ दी ये भागते हुए वापस आया। पूछा है कितना समय के बाद कितना वेलोसिटी में वो आके मीन पोजीशन में पहुंचेगा। मीन पोजीशन कौन सा होता है? फॉर ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम यू नो द मीन पोजीशन इज हियर एट द नेचुरल लेंथ। यही तो होता है मीन पोजीशन। अच्छा, मीन पोजीशन में कब वो वापस पहुंचेगा हमें पता करना है। और क्या पता करना है उससे पहले? करेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप। क्योंकि आप लोग स्मार्ट हो तो आपको मालूम होगा हियर द मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। ये मोशन तो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है ना? तो हम क्या कहेंगे? द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप विल बी ए कॉस ओमेगा टी। ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि हमें समझ में आता है कि हमारा φ0 का वैल्यू π/2 होता है। जब वो पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप ए कॉस ओमेगा टी होगा। हाँ, समझ में आया। अब मुझे इसमें से ए और ओमेगा पता करना है। ए क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अच्छा, ये बात है। हम तो ये जो ब्लॉक था इसको अपना मीन पोजीशन से 2 मीटर दूरी तक खींचे और छोड़ दी। तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 मीटर। सो दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। हाँ, ओमेगा क्या है? ओमेगा इज यू नो √(k/m). के कितना दिया है? डाटा में दिया है k इज 100, m दिया है 4। वैल्यू डाले तो क्या आ गया? ये इट इज 100/4 का √, कितना? इट इज 5 रेडियन पर सेकेंड। तो फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप तो निकल गया। कितना? 2 cos 5t मीटर। क्या बातें सबको समझ में आ रहा है? यस, समझ में आ रहा है। देखो, चलिए बिट नंबर 2 में कुछ पूछा। ये बिट नंबर 1 था। बिट नंबर 2 में पूछा कि जैसे हम इसको यहां से खींच लिए, ये ब्लॉक था, ये ब्लॉक अपनी जगह चुपचाप इक्विलिब्रियम में बैठा हुआ था मीन पोजीशन पे। आप इसको 2 मीटर तक खींच लिए, 2 मीटर तक खींच के छोड़ दी, तो वो ब्लॉक यहां से वापस आना शुरू करेगा। यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा? अरे ये तो सिंपल है।
जब कोई चीज ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, यहां से यहां तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगता है? T/4, है ना? हियर T कितना है? 2π/ω, और वो कितना है? 2π/5 सेकेंड्स। सो टाइम टू रीच मीन पोजीशन कितना हो जाएगा? T/4। T/4 इज 5/10 सेकेंड्स। तो जब ऐसे हम इसको 2 मीटर खींचेंगे और छोड़ देंगे, वो वापस आएगा। यहां पर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? 5/10। समझ में आया? ये है इंटरेस्टिंग चीज। सोचो, अगर मैं यहां पर 2 मीटर की जगह 3 मीटर खींच के छोड़ता तो वापस आने के लिए कितना समय लगता? कितना समय लगता? अब 2 मीटर खींचो या 3 मीटर खींचो, हम बताए थे दिस टाइमिंग इज ऑलवेज T/4, उतने ही समय लगता है। अब बोलोगे सर 2 मीटर खींच के छोड़ोगे आने के लिए जितना समय लगेगा, 3 मीटर खींच के छोड़ेंगे आने के लिए उतने ही समय लगेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है तो फोर्स भी तो बढ़ जाता है। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एंड ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। तो जोर से भाग के आएगा और उतने ही समय में पहुंचेगा। 10 मीटर खींच के छोड़ देंगे तब भी वापस आने के लिए उतने ही समय लगेगा। 2 सेंटीमीटर खींच के छोड़ देंगे तब भी वापस आने के लिए उतने ही समय लगेगा। समझ में आ रहा है? अब ये टाइम टू रीच मीन पोजीशन हो गया। ये लास्ट बीट में कुछ दूसरा पूछा गया, विथ व्हाट वेलोसिटी द ब्लॉक रीचेस द मीन पोजीशन। कौन सा वेलोसिटी में ये ब्लॉक मीन पोजीशन में पहुंचेगा? जब वो यहाँ पर आके वापस पहुंचेगा तब उसका वेलोसिटी क्या होगा? ओहो, आप चाहे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ पर स्प्रिंग में एनर्जी था हाफ के x², जब वो यहाँ पर आ गया सारा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन गया हाफ mv², हाफ के x² इक्वल हाफ mv², वहां से भी निकाल सकते हो। लेकिन हमें तो स्मार्ट मेथड्स मालूम है। यहाँ पर जब पहुंचेगा तब वेलोसिटी क्या होता है? a ओमेगा होता है। तो हम कहेंगे वेलोसिटी एट मीन इज इक्वल टू a ओमेगा। a तो हम निकाल चुके हैं, 2 मीटर है, ओमेगा इज 5, 2 × 5 इज 10 मीटर पर सेकेंड। आप चाहो तो हाफ के x² इज इक्वल टू हाफ mv² करके भी कर सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर। बट हम लोग एसएचएम कर रहे हैं तो एसएचएम का फंडामेंटल लगाए, पता चल गया यहाँ पर जब वो आके वापस पहुंचेगा तब उसका वेलोसिटी हुआ होगा 10 मीटर पर सेकेंड। क्या बातें समझ में आ रहा है सबको? इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. चलिए, अगर ये चीजें समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। मैं आपको कुछ केसेस दे रहा हूं। ये इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन ईच ऑफ following cases, the block was given same velocity v as shown, same velocity v at equilibrium position, as shown, in which case the amplitude of oscillation is maximum। मैं आपको कुछ केसेस दे रहा हूं। हर एक केस में क्या हुआ है? हर एक केस में हुआ यूं है कि the block is given a velocity v, और हर एक केस में ये ब्लॉक एसएचएम करने वाला है। आपको पूछा गया है कौन सा केस में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम होगा। पहला केस, कोई स्प्रिंग है, कोई ब्लॉक लगा है, मास इसका m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। दूसरा केस है, कोई एक स्प्रिंग है ऐसे, और यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है, मास इसका m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और ये एंगल कुछ है, इंक्लाइन प्लेन है। तीसरा केस में ये कोई एक ब्लॉक है, किसी एक स्प्रिंग के ऊपर बैठा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, मास इसका m है। हर एक केस में ब्लॉक को कुछ कुछ वेलोसिटी दिया गया। इस केस में दिया गया v इन दिस डायरेक्शन,
इस केस में दिया गया v इन दिस डायरेक्शन, इस केस में दिया गया v इन दिस डायरेक्शन। तो ये हर एक केस में ये सिस्टम ऑसिलेट करने लगेगा, ऐसे ऐसे होने लगेगा। इस केस में भी कुछ ऐसे ऐसे होने लगेगा और इस केस में भी ये कुछ ऐसे ऐसे होने लगेगा। कौन सा केस में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम होगा? तीनों केस में k और m बराबर है, आपको दिख रहा है। ऑल दी थ्री केसेस में k एंड a आर सेम, k एंड m आर सेम। कौन सा केस में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सबसे ज्यादा होगा, आपको बताना है। देखें किसका दिमाग जो चल रहा है, सोचो। क्या तीनों केस में ब्लॉक का ऑसिलेशन जो होगा इसका ओमेगा बराबर है कि अलग अलग है? ओमेगा रूट ओवर ऑफ k बाई m। क्या लिखेंगे? इन ईच केस ओमेगा इज रूट ओवर ऑफ k बाई m। अच्छा, इन ईच केस v मैक्स, क्या ये वेलोसिटी एट मीन है ना, कितना है? इट इज इक्वल टू v, हम v वेलोसिटी दिए हैं मीन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दिए हैं, मतलब a ओमेगा इज v। तीनों केस में a ओमेगा बराबर है, तीनों केस में ओमेगा बराबर है। तो कौन सा केस में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सबसे ज्यादा होगा? इट विल बी सेम इन ऑल द थ्री केसेस। क्या बातें समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? हम कहेंगे हर एक केस में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सेम होने वाला है, ठीक है। तो हम कहेंगे यहां पर सो एम्पलीट्यूड इज सेम इन ईच केस। हर एक केस में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बराबर होगा, ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन हर एक केस में बराबर हो जाएगा। एसएचएम बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, बस उसकी फॉर्मूला के साथ आपको अक्विंटेंसी आ गया तो करने में बहुत मजा आता है, करने में इसका बहुत मजा आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे हुआ यूं है कि एक स्प्रिंग ऐसे लगा है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है m, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। थोड़ा ध्यान से देखना, मैं इस ब्लॉक को कुछ भी जीरो वेलोसिटी में इधर फेंकता हूं। ब्लॉक यहां से कितना दूर पे था? इट वाज एट ए डिस्टेंस d। जब ये ब्लॉक को मैं यहां से इसको फेंकूंगा तो ये ब्लॉक पक्का ऐसे जाएगा, ऐसे जाके ये ब्लॉक, दिस ब्लॉक इज गोइंग टू, दिस ब्लॉक विल गो लाइक दिस, ये सॉरी, ये ब्लॉक जाएगा ऐसे, आएगा ऐसे, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, रुकेगा, फिर से वापस आ जाएगा ऐसे, है कि नहीं? ब्लॉक जाएगा, घूम फिर के फिर से वापस आ जाएगा। क्या लिखे हैं क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है थोड़ा देख लेते हैं। इन फिगर शोन फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम the block returns to its original position, कितना समय के बाद? ओरिजिनल पोजीशन। ये ब्लॉक कितना समय के बाद अपना ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएगा? थोड़ा दिमाग पर जोर लगाइए, आप कर सकते हैं। हुआ क्या है बताओ तो? हुआ यूं है कि ये जो ब्लॉक है यहां से चलना शुरू किया, यहां तक आने के बाद स्प्रिंग को कंप्रेस किया, फिर कहीं ना कहीं रुका,
फिर वहीं से वापस आया, फिर यहाँ तक आया, यहाँ पर स्प्रिंग को छोड़ दिया, फिर भाग के आ गया, है ना। मतलब हमें ये पूरा टाइम पता करना है। अच्छा बताओ पहले बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जब ब्लॉक में कुछ काइनेटिक एनर्जी था, स्प्रिंग में तो कोई भी एनर्जी नहीं था। मतलब जब ये ब्लॉक स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा और फिर आएगा फिर छोड़ेगा, अगर यहाँ पर ब्लॉक का वेलोसिटी v0 था तो यहाँ पर ब्लॉक का वेलोसिटी क्या रहेगा बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? v0 ही रहेगा, है कि नहीं? एनर्जी तो v0 ही रहेगा। अच्छा तो चलो ऐसे करते हैं, मैं सारा पॉइंट को थोड़ा नेमिंग कर देता हूँ, शायद आपको समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा मैं अगर नेमिंग कर देता हूँ तो। कैसे नेमिंग करता हूँ? आई गिव दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज ई। मुझे पूरा टाइम चाहिए, पूरा टाइम चाहिए, ये घूम के आएगा ऐसे, ठीक है। सॉल्यूशन टी ए बी, टी ए बी, ए टू बी जाने के लिए कितना समय लगेगा? अरे डी डिस्टेंस गया था v0 स्पीड में, तो डी टू ई आने के लिए वो भी वही रहेगा। अच्छा जाने के लिए जितना समय लगेगा यहां तक, यहां से यहां तक आने के लिए उतना ही रहेगा, क्योंकि यहां पर इसका स्पीड था v0। बाकी रह गया बी सी डी, टी बी सी डी, टी बी सी डी, ये टाइम देखना है, ये टाइम देखना है। ये समय में ये ब्लॉक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड था, ये समय में ये ब्लॉक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड था। जब अटैच्ड था कैसा मोशन कर रहा था? ऐसे गया, ऐसे आया। अगर ये अटैच्ड ही रहता, छोड़ता नहीं, तो शायद वो ऐसे जाता और ऐसे आता। मतलब ये पूरा टाइमिंग कितना है आपको मालूम है? 2 पाई रूट ओवर ऑफ m by k, 2 पाई रूट ओवर ऑफ m by k होता पूरा टाइमिंग, लेकिन हमें तो यहां तक का टाइमिंग चाहिए। क्या हो जाएगा? इट इज हाफ ऑफ 2 पाई रूट ओवर ऑफ m by k, दैट इज इक्वल टू पाई रूट ओवर ऑफ m by k। समझ में आया क्या? तो फिर टोटल टाइम टू रिटर्न कितना हो जाएगा? टी ए टू बी प्लस टी बी सी डी प्लस टी डी टू ई, जोड़ो ये दोनों तो हो गए डी बाई v0, तो बन गया 2d बाई v0 प्लस पाई रूट ओवर ऑफ m by k। इतनी समय के बाद वापस आएंगे। क्या बातें सबको समझ में आ रहा है? Is it understood? Yes. सिंपल हार्मोनिक मोशन काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। थोड़ा फॉर्मूला को आपको अटेंडेंस बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप फटाफट सोच पाओ, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग और भी ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे, नॉट एट स्ट्रेच। इतना आज करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास फिर से हम लोग इसके ऊपर और भी सारे न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।